Hello students, today we discuss about the hydroelectric power plant. So what are the principal component which is useful in the hydraulic power plant we discuss in this video. So let's start with the principal components. So first is the storage reservoir. You see that in this figure. This is the storage reservoir. Next one is the forebay. Next, intake, control gates, pan stop, valves and gates, trash racks, trail racks, draft tubes, turbine, and generator and power transmission line. So these are the principal components of a hydraulic power plant. So let's start with one by one. We discussing each and every principal component of a hydraulic power plant. First is the storage or reservoir. So storage and reservoir, we know that what is the reservoir. It can be artificial or natural. In the case of natural, it can be a lake which is situated at a very high altitude. It is serve as a storage reservoir in a hydraulic power plant. And if that is not possible, then we construct a dam like structure for the storage of the water and get the optimum head to generate a hydroelectric power. So it is the basic requirement of a hydroelectric plant. Its purpose is to store water during excess flow of the period in the rainy season and supply the same in the flow period or dry season, and thus it is helped in supplying water to the turbines according to the load on the power plant. Okay, and a reservoir can be either natural and artificial. A natural reservoir is a lake in a high mountains, and an artificial reservoir made by constructing a dam across a river. The low head plants require very large storage reservoir, and the capacity of the reservoir depend upon the difference between runoff during high and lean flows. So कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर किसके ऊपर डिपेंड करती है कि मैक्सिमम कितना फ्लो आता है इन द रेनी सीजन एंड मिनिमम कितना फ्लो आता है इन द ड्राई सीजन. The function of the reservoir is not only to raise the water surface by steam, and it is also useful to create an artificial head, but also to provide the pondage and storage facility of the diversion into conducts. So this is all about the reservoir. You see in this diagram, this is the reservoir, and dam is working as a reservoir. Next one is the forebay. So what is the forebay? The forebay, it serve as a regulating reservoir. तो forebay भी क्या होता है, एक रिजर्वायर का ही एक पार्ट है. और ये क्या होता है, ये आर्टिफिशियल हो सकता है या नेचुरल, दोनों हो सकता है. तो फोरबे का काम क्या होता है, ताकि ये रिजर्वायर को रेगुलेट करे एंड स्टोर करे वाटर, स्टोरिंग वाटर टेम्परेरी ड्यूरिंग टू लाइट लोड पीरियड एंड प्रोवाइडिंग द सेम फॉर इनिशियल इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीजिंग लोड ड्यूरिंग विच वाटर इन द कैनाल इज बीन एक्सीलरेटेड. सो पर्पज़ ऑफ द फोरबे इज़ दैट के फोरबे क्या होता है, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वाटर को स्टोर करके रखना होता है. जैसे ही जब फोरबे इसलिए स्टोर करके रखते हैं ताकि जब रिजर्वायर के अंदर क्या हो, इतना हेड नहीं है, तो हम फोरबे का यूज़ किस में कर सकते हैं, पावर जनरेशन. क्योंकि पावर जनरेशन के लिए हमको क्या चाहिए, हाई हेड चाहिए होता है, ताकि क्या हाई वेलोसिटी से वाटर फ्लो हो टरबाइन की तरफ. तो अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, फोरबे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. और फोरबे से जो इसमें हम क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करके रखते हैं, ताकि जब क्या हो, हमको जब आर्टिफिशियल या हेड की ज़रूरत हो, मतलब एक्स्ट्रा हेड ऑफ वाटर की ज़रूरत हो, तब हम फोरबे के वाटर को यूज़ कर सकते हैं. सो इन शॉर्ट, फोरबे मे बी कंसिडर्ड एज ए इनलार्ज बॉडी ऑफ वाटर जस्ट अबव द इंटेक टू स्टोर वाटर टेम्परेरीली टू मीट द hourly load fluctuation. Okay, and this may either be a pond behind the diversion dam or a section, or can spread up to accommodate the required width of the intake. So see this diagram,
द 4B इज सिचुएटेड जस्ट अबव द इंटेक वेयर द और क्या वेयर द हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक प्लांट आर लोकेटेड जस्ट एट द बेस ऑफ द डैम। तो 4B को हम कहाँ पे एक्चुअल में सिचुएटेड होता है, तो जब क्या हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो है वो कहाँ हो, लोकेट हो जस्ट एट द बेस ऑफ द डैम। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट है वो एकदम बेस के, डैम के बेस है उसके नियरली है और उसके पास है। तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में किसी भी तरह के 4B की रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि जो रिजर्वायर होता है वही क्या कर सकता है, 4B का काम कर देगा। तो हमको कोई एक्स्ट्रा 4B बनाने की या कंस्ट्रक्ट करने की या ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन क्या होता है, हाउएवर व्हेन द प्लांट्स, जो पावर जनरेशन प्लांट्स है जहाँ पे टरबाइन और जनरेटर होते हैं, वो क्या होता है अवे फ्रॉम द स्टोरेज रिजर्वायर, तो हमको क्या होगी 4B की रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस इज जस्ट 4B इज जस्ट ए वाटर टैंक, आर्टिफिशियल और मे बी इट्स ए पॉन्डेज और नेचुरल भी, तो दोनों ही तरह का हो सकता है। तो 4B का काम क्या होता है, जब हमको रिक्वायर्ड हेड नहीं मिल रहा है फॉर पावर जनरेशन के लिए, तो हम जो इसमें 4B में जो वाटर स्टोर होगा उसको इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर पावर जनरेशन। नेक्स्ट है इंटेक। तो इंटेक क्या होता है, इंटेक क्या होता है, दीज आर ए कॉन्क्रीट और मेजनरी स्ट्रक्चर and is provided relatively for the clean water free from the pollution, sand and objectionable floating material। तो इंटेक क्या होता है, इंटेक का काम यही होता है ताकि वो क्या, जो वाटर के साथ में जो इम्प्योरिटीज़ है, जो बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ है या जो स्टोन्स वगैरह है, उसको क्या करे, ये आगे ना जाने दें। आगे मतलब कहाँ, जो कंडक्ट्स होते हैं, जो पाइप्स है जो वाटर को लेके जा रहे हैं टरबाइन की तरफ, ताकि क्या ये जो इम्प्योरिटीज़ है वो टरबाइन तक ना पहुँचे, उसको पहले ही क्या कर लिया जाए, उसको पहले ही स्क्रीन आउट कर लिया जाए। तो उसके लिए हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, इंटेक को प्रोवाइड कराते हैं। द इंटेक इंक्लूड द हेडवर्क विच आर द स्ट्रक्चर एट द इंटेक ऑफ कंडक्ट्स, टनल्स और फ्लम्स। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर इंक्लूडेड booms, screens and trash rack, sluice to divert and prevent entry of debris and ice into the turbine। तो ये इंटेक किससे बना होता है, इंटेक के अंदर क्या क्या होते हैं, बूम्स होते हैं, स्क्रीन्स होती है ताकि क्या हो, स्क्रीन्स बोल दीजिए या ट्रैश रैक बोल दीजिए, इसका काम होता है स्क्रीनिंग करना इम्प्योरिटीज़ को। स्लीव्स प्रोवाइड कराते हैं, क्यों, ताकि डाइवर्ट कर सकें और प्रिवेंट कर सकें एंट्री ऑफ डेब्रीज मतलब बड़े बड़े पत्थर जिनको हम डेब्रीज कहते हैं। एंड आइस, अगर हमारा डैम का है कोल्ड एरिया में है तो देर इज़ ए चांस दैट मे बी आइस ऑल्सो कम विद द वाटर। सो इंटेक क्या काम करता है, इन सबको स्क्रीन आउट करता है। द बूम्स प्रिवेंट द आइस। तो बूम्स का क्या काम होता है, इसका काम होता है प्रिवेंट करना आइस और फ्लोटिंग लॉग्स। फ्लोटिंग लॉग मतलब पेड़ के तने या बड़े बड़े जो होते हैं, फ्रॉम गोइंग इनटू द इंटेक्स बाय डाइवर्टिंग देम इनटू ए बाईपास शूट। तो बूम का क्या काम होता है, डाइवर्ट करना आइस को, फ्लोटिंग लॉग्स को बाय द यूज ऑफ डाइवर्टिंग इन बाईपास शूट। और स्क्रीनिंग और ट्रैश रैक का काम क्या होता है, इसका काम होता है ये फिटेड डायरेक्टली एट द इंटेक टू प्रिवेंट द डेब्रीज फ्रॉम गोइंग इनटू द लेक। तो स्क्रीन और ट्रैश रैक का काम क्या होता है, स्क्रीनिंग का काम होता है छानना। तो स्क्रीन्स जो होती है वो क्या होती है, बिल्कुल इंटेक के जो मुहाना है वहाँ पे प्रोवाइड कराई जाती है। एंड डेब्रीज स्क्रीनिंग डिवाइस शुड ऑल्सो बी फिटेड ऑन द ट्रैश रैक। द इंटेक स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द हाई प्रेशर इंटेक्स यूज इन द केस ऑफ लार्ज स्टोरेज रिजर्वायर एंड लो प्रेशर इंटेक्स यूज इन द केस ऑफ स्मॉल पॉन्ड्स प्रोवाइडिंग फॉर स्टोरिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। तो जिस तरह का अगर आपका रिजर्वायर है, जैसे उसकी कैपेसिटी, उसके हिसाब से इंटेक कैसा हो सकता है, हाई और लो। ओके, तो अभी तो हम यहाँ पर पहुँच गए इंटेक पर। ये रहा इंटेक, जैसे आप ये देख सकते हैं डॉट 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 डॉट, जो डॉट डॉट लाइन से ये क्या शो कर रही है आपको, इंटेक शो कर रही है। इंटेक के बाद नेक्स्ट क्या होता है, आप देख सकते हैं कंट्रोल गेट्स। जब कंट्रोल गेट्स का क्या काम होता है, एक्सेस करना का, जब वाटर को आपको आगे की तरफ फ्लो करना है तो हम गेट्स को अप कर देंगे, और जब हमको वाटर को आगे की तरफ टरबाइन की तरफ जाना नहीं भेजना है तो हम उसको डाउन कर देंगे। तो नेक्स्ट आता है गेट्स, कंट्रोल गेट्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, पेन स्टोक और सर्ज टैंक। तो नेक्स्ट है अब सर्ज टैंक। तो आप ये फिगर में आप देख सकते हैं, दिस इज सर्ज टैंक। तो ये है रिजर्वायर और डैम,
ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये वाटर को अलाउ कर रहे हैं। ये वाटर किस में घूम रहा है, ये वाटर चल रहा है अभी कंडक्ट्स में चल रहा है, टनल या कंडक्ट जो भी कहिए आप इससे। और यहाँ एक स्टोरेज टैंक यहाँ पे कुछ प्रोवाइड कराया हुआ है। तो स्टोरेज टैंक क्यों सर्ज टैंक प्रोवाइड कराया है। तो सर्ज टैंक क्यों प्रोवाइड कराते हैं, सो इसका पीछे फिनोमेना ये है कि द रिडक्शन इन द लोड और जनरेटर कॉज द गवर्नर टू क्लोज द टर्बाइन गेट्स एंड दस क्रिएट एन इंक्रीज प्रेशर इन द पेन स्टोक। तो क्या होता है कि जब आप क्या करें, जनरेटर के लोड के अंदर रिडक्शन जब पैदा होता है जनरेटर्स, तो जनरेटर का तो गवर्नर क्या करता है कि टरबाइन के गेट्स को ऑफ करता है। जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो क्या करता है, टरबाइन के गेट्स को ऑफ कर देता है। तो अगर जैसे ही टरबाइन के गेट को ऑफ कर देंगे तो उसकी वजह से जो ये पेन स्टोक है, पेन स्टोक कहते हैं ये जो वाटर जो कंडक्ट्स इसके थ्रू टरबाइन तक वाटर जा रहा है, तो जब इन गेट्स को एकदम क्लोज कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ये अब जो वाटर एकदम से आपने अंदर आगे जाने से क्लोज कर दिया, तो उसकी वजह से जो एरिया है बीच वाला जिसमें वाटर फ्लो हो रहा है उसमें क्या होगा, एक प्रेशर डेवलप होगा। और ये एक्सेसिव प्रेशर जो होगा जो पेन स्टोक में डेवलप होगा उसकी वजह से क्या होगा, वाटर हैमरिंग इफेक्ट, कंडक्ट्स के अंदर वाटर हैमरिंग इफेक्ट डेवलप होगा। और इसकी वजह से क्या होगे, कंडक्ट्स क्या हो सकते हैं, दिस में बी डिस्ट्रॉयड। तो हमको क्या होगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो ताकि क्या हमारे पेन स्टोक जो है वो बर्स्ट ना हो। तो इस टू अवॉइड दिस पॉजिटिव वाटर हैमर प्रेशर सम मीन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर टेकिंग द रिजेक्टेड फ्लो। तो क्या होता है, जब टरबाइन के गेट्स क्या हो जाए, क्लोज हो जाते हैं, तो जो वाटर है, जो ये रिजेक्टेड वाटर है जो अब आगे आपको नहीं चाहिए, तब इस वाटर के अंदर आपने गेट्स को ऑफ कर दिया, तो अब क्या होगा, इस यहाँ पे क्या होगा, प्रेशर डेवलप होगा और वाटर प्रेशर डेवलप होगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये वाले जो स्ट्रक्चर है ये मे बी बर्स्ट हो सकता है। तो इस प्रेशर को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक सर्ज टैंक प्रोवाइड कराते हैं, ताकि क्या हो जाता है, जो ये रिजेक्टेड वाटर फ्लो है उसको हम क्या भेज सकें, इस सर्ज टैंक में भेज सकें, और ताकि क्या हो, इस कंडक्ट के अंदर प्रेशर जो है वो स्टेबलाइज कर हो जाए। तो दिस मे बी एक्नोपलाइज बाय प्रोवाइडिंग ए स्मॉल स्टोरेज रिजर्वायर और टैंक और ओपन एट द टॉप। तो इस सर्ज टैंक का जो टॉप है वो कैसा रहता है, ओपन रहता है, ताकि एटमॉस्फेयर की प्रेशर मेंटेन रहे। तो इस एक्स्ट्रा वाटर को और इस एक्स्ट्रा प्रेशर को मिनिमाइज़ करने के लिए हम क्या कराते हैं, एक सर्ज टैंक प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिसका टॉप ओपन रहे फॉर रिसीविंग द रिजेक्टिव फ्लो एंड दस रिलीविंग द कंडक्ट पाइप फॉर एक्सेसिव वाटर हैमर प्रेशर। तो इसको क्यों प्रोवाइड कराया, ताकि एक्सेसिव वाटर प्रेशर को मिनिमाइज़ कर सकें, और जो रिजेक्टेड वाटर फ्लो है, जो टरबाइन ने जो वाटर फ्लो लेने से टरबाइन में हमने जाने से मना कर दिया, तो जो रिजेक्टेड वाटर है वो ताकि क्या हो जाए, इसके अंदर जाके स्टोरेज हो जाए और प्रेशर मिनिमाइज हो जाए। So this storage reservoir called the surge tank and it is usually located as close as to the power station as possibly, preferably on the ground to reduce the height of water। तब सर्ज टैंक को कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, जहाँ पर हमारा पावर हाउस है, जहाँ पे क्या पावर, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो सर्ज टैंक कहाँ होना चाहिए, नियर द पावर स्टेशन। और कहाँ होना चाहिए, अगर मोस्ट प्रेफरेबली क्या है कि ये ग्राउंड सरफेस पे ही हो, ना कि एक्स्ट्रा हाइट के ऊपर प्रोवाइड कराया जाए। एक्स्ट्रा हाइट के ऊपर प्रोवाइड कराने से हमें बचना है, ठीक है। ए डिक्रीज इन लोड डिमांड कॉज ए राइज इन वाटर लेवल इन द सर्ज टैंक। सो क्या होता है, जब लोड डिमांड बढ़ती है, डिक्रीज होती है, तो क्या होता है, वाटर लेवल क्या होता है, राइज होता है सर्ज टैंक में। दिस प्रोड्यूस ए रिटार्डिंग हेड एंड रिड्यूस द वेलोसिटी ऑफ वाटर इन द पेन स्टोक। इसकी वजह से क्या होता है, वेलोसिटी इन द पेन स्टोक, पेन स्टोक ये एरिया है, इसके अंदर क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ वाटर रिड्यूस हो जाती है। एंड द रिड्यूस इन द फ्लो ऑफ वेलोसिटी टू डिज़ायर लेवल द वाटर इन द टैंक fall and rise until damped out by friction. So increase in the load on the plant cause the governor to open the turbine gates in order to allow more water to flow through the penstoke to supply the increased load, and there is a tendency to cause vacuum or negative pressure in the penstoke. This negative pressure in the penstoke provide the necessary accelerating force and it is objectionable for very long conducts due to difficult turbine regulation. Okay? तो ये काम होता है सर्ज टैंक का। फिर वो ये जब अगेन द अंडर सच कंडीशन इज एडिशनल वाटर फ्लो इन द सर्ज टैंक व्हेन द
Then the result of water level in the surge tank falls, and accelerating head is created, and flow of water in the penstoke is increased. The surge tank help in stabilizing the velocity and the pressure in the penstoke and reduce water hammer and negative pressure effect. तो इसका फर्स्ट तो काम क्या होता है, जब टरबाइन से ने आप एक्स्ट्रा वाटर लेने से जब मना कर देते हैं तब क्या होता है, इस प्रेशर वाटर को अपने अंदर स्टोर करना. लेकिन जब हम टरबाइन को वापस स्टार्ट करेंगे और जब इन गेट्स को खोलेंगे ताकि वाटर क्या हो टरबाइन की तरफ जाना लगे, तो इस केस के अंदर भी सर्ज टैंक क्या करेगा, सर्ज टैंक हेल्प ये करेगा क्या इसके अंदर जो वाटर जो स्टोर हुआ था वो वापस किसकी तरफ, कंडक्ट की तरफ जाएगा, और इससे क्या होगा, जो नेसेसिटी हेड की रिक्वायरमेंट है उसको ये क्या करेगा, फुलफिल करेगा. ओके, तो ये दोनों ही तरह से सर्ज टैंक काम आता है. एंड द सर्ज टैंक में भी ए सिंपल सर्ज टैंक और ऑरिफिस सर्ज टैंक आपको जैसा प्रोवाइड कराना है वैसा आप प्रोवाइड करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर यूज़. नेक्स्ट है द पैन स्टोक. पैन स्टोक क्या होता है आप देख सकते हैं फिगर के अंदर. जैसा भी हम बात कर रहे थे, ये एरिया क्या है, पैन स्टोक है, जो वाटर को क्या कर रहा है, रिजर्वायर से ले रहा है और टरबाइन तक पहुंचा रहा है. तो पैन स्टोक क्या होता है, पैन स्टोक इट इज़ ए क्लोज कंडक्ट विच कनेक्ट द फोरबे और सर्ज टैंक टू द स्क्रॉल केस ऑफ द टरबाइन. तो इसका कनेक्ट किसको करता है, जो रिजर्वायर है, रिजर्वायर के बाद नेक्स्ट क्या आता है, फोरबे. तो फोरबे से होता हुआ वाटर आगे जाता है, तो ये किसको कनेक्ट करता है, फोरबे और टरबाइन को. इसके अलावा ये किसको कनेक्ट करता है, सर्ज टैंक और टरबाइन को. तो आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर यहाँ फोरबे है, तो यहाँ से ये टरबाइन को कनेक्ट कर रहा है. इसके अलावा इस सर्ज टैंक से भी टरबाइन को कनेक्ट कर रहा है. तो ये पूरा एरिया क्या कहलाता है, ये कहलाता है पैन स्टोक. तो पैन स्टोक क्या आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े पाइप्स जो हैं ये क्या है, पैन स्टोक है. इन केस ऑफ मीडियम हेड पावर प्लांट ईच यूनिट इज़ यूजुअली प्रोवाइड विद इट्स ओन पैन स्टोक. जब क्या हो, मीडियम हेड पावर का प्लांट हो तो क्या होता है, हर यूनिट का क्या होता है, अपना अलग से एक पैन स्टोक होता है. ठीक है. इन द केस ऑफ हाई हेड प्लांट a single pan stroke is frequently used and branches connection are provided at the lower end to supply 2 or more unit. ठीक है. तो क्या होता है, जैसे वाटर जैसे नीचे आपके पास एक नंबर ऑफ़ टर्बाइंस है, ठीक है, और ऊपर डैम्स है और जहाँ से वाटर जाना है. तो अगर ये मीडियम हेड का डैम है, मतलब डैम के हेड हाइट ज़्यादा नहीं है, रिक्वायर्ड हेड है वो कम है, तो क्या होगा, हर टर्बाइन के लिए आप क्या सेपरेटली एक अलग पैन स्ट्रोक प्रोवाइड कराते हैं. लेकिन अगर क्या हो, इन द केस ऑफ व्हेन द वेयर इज़ वेरी हाई हेड, बहुत हाई हेड का बड़ा डैम है, तो उस केस में क्या करेंगे, एक बड़ा पैन स्ट्रोक प्रोवाइड कराएंगे जिसकी क्या हो, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हो, ह्यूज अमाउंट में वो वाटर को कन्वे कर सके. और यहाँ नीचे जैसे आपके नंबर ऑफ़ टर्बाइंस है, तो क्या होंगे, पैन स्ट्रोक से तो एक सिंगल टर्बाइन आएगा और उसके बाद वो क्या होगा, अलग अलग जो टर्बाइन यूनिट्स हैं उनके लिए अलग अलग ब्रांचेस निकल जाएगी. तो एक सिंगल पैन स्ट्रोक रिजर्वायर से आया और उसके बाद क्या हुआ, अलग अलग ब्रांचेस के लिए, अलग अलग टर्बाइन के लिए अलग अलग ब्रांचेस उसमें से निकल जाएगी. तो ये होता है पैन स्ट्रोक का डिज़ाइन. ओके, द पैन स्ट्रोक आर बिल्ट ऑफ द स्टील और रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट. स्टील पैन स्ट्रोक आर ऑलमोस्ट ऑलवेज वेल्डेड ऑन द लॉन्गिट्यूडनल सीम. तो इसके स्टील और कंक्रीट दोनों तरह के हम पैन स्ट्रोक यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. द सर्कमफेरेंशियल सीम में बी वेल्डेड, और जो इसकी सर्कमफेरेंशियल सीम है, जो सर्कमफ्रेंस है जो, उसको क्या करता है, वेल्डेड रहना चाहिए हमेशा. एंड मे बी वेल्डेड ऑल्सो इन लॉन्ग पैन स्ट्रोक. ग्रेट केयर मस्ट बी टेकन टू प्रोटेक्ट द कंडक्ट अगेंस्ट द वाटर हैमरिंग इफेक्ट. तो उसको क्या होता है, टाइम टू टाइम इसका आपको इसको केयर करनी पड़ेगी, ताकि क्या हो, जो उसमें एकदम से जब वाटर डैम से फ्लो होता है तो उसमें क्या होता है, उसकी वजह से कंडक्ट्स में क्या होता है, वाटर हैमरिंग इफेक्ट होता है, और इससे मे बी द पैन स्ट्रोक क्या होता है, इस वजह से डैमेज भी हो सकते हैं. तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ग्रेट केयर की रिक्वायरमेंट है. द थिकनेस मस्ट बी एडिक्वेट टू द विद स्टैंड बोथ नॉर्मल एंड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर एंड ऑल्सो द सडन सर्ज बोथ. तो इसकी थिकनेस भी जो वाटर की रिजर्वायर की कैपेसिटी है और जितना हेड है उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल होनी चाहिए. तो ये होता है पैन स्ट्रोक. नेक्स्ट है वॉल्व्स एंड गेट. तो वॉल्व्स एंड गेट का क्या काम होता है,
वॉल एंड गेट का क्या काम होता है? इनका काम होता है रेगुलेशन करना कि कितना अमाउंट ऑफ वाटर किस में जाना चाहिए टरबाइन के अंदर। टरबाइन के जब को कितना हेड की रिक्वायरमेंट है, कितना वेलोसिटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग उसको चैनलाइज करना, मेंटेन करना। तो वो काम होता है वॉल्स का और गेट का। तो ये कुछ डायग्राम है इस तरह के कुछ वॉल्स और प्रोवाइड कराते हैं हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर। ओके, इन लो हेड प्लांट्स गेट्स आर एट द एंट्रेंस टू द टरबाइन। तो जब लो हेड टाइप का अगर रिजर्वायर है या पावर प्लांट है, तो हमने पढ़ चुके हैं 3 तरह के पावर प्लांट स्कीम होती है, लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड, पिछले लेक्चर में। तो अगर लो हेड टाइप का पावर प्लांट है तो क्या होगा, जो वॉल्स और गेट है वो कहाँ पे प्रोवाइड करा देंगे? एकदम जहाँ पे टरबाइन का एंट्रेंस है, एंट्रेंस ऑफ द टरबाइन। एंड केजिंग आर यूजुअली ऑल दे आर नीडेड टू शट ऑफ द फ्लो एंड प्रोवाइड फॉर अनवाटरिंग फॉर द टरबाइन एंड इंस्पेक्शन एंड रिपेयर्स। Okay, and individual host operated gates are provided in case where the frequent shutdown may be called for and where the time available for inspection is limited। ठीक है, तो इंडिविजुअल अलग अलग कहाँ प्रोवाइड कराए जाएंगे? जहाँ पे क्या हो, टाइम बहुत लिमिटेड है इंस्पेक्शन करने के लिए, और जहाँ पे क्या हो, शटडाउन क्या होता है, फ्रीक्वेंटली हो, ऑन और ऑफ जो टर्बाइन के गेट्स है वो फ्रीक्वेंटली हो रहे हैं। तो वहाँ पे हम किस तरह का वॉल्व्स एंड गेट प्रोवाइड कराएंगे? इंडिविजुअल होस्ट ऑपरेटेड वॉल्व्स एंड गेट। अदर प्लांट्स एम्प्लॉय स्टॉप गेट्स और स्टॉप लॉक्स। और इसके अलावा जो अदर टाइप के प्लांट्स है जहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंटली आप ऑन ऑफ नहीं कर रहे हैं और जहाँ पे इंस्पेक्शन टाइम भी अवेलेबल है, तो इन देयर टाइप ऑफ प्लांट्स एम्प्लॉय स्टॉप गेट्स और स्टॉप लॉक्स विच आर प्लेस्ड इन ए सेक्शन बाय मीन्स ऑफ ट्रैवलिंग क्रेन। ओके, फॉर इंस्टॉलेशन एंड एम्प्लॉइंग मीडियम और लॉन्गर लेंथ पेन स्टोक, फॉर एम्प्लॉइंग common pen stroke for more than one unit, it is necessary to install valve at near the entrance to the turbine casing। तो उस टाइप के केसेस में क्या होना चाहिए, जो वॉल्व्स है वो कहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं? नियर द एंट्रेंस ऑफ टर्बाइन केसिंग। दीज आर द यूजुअली ऑफ द बटरफ्लाई और पाइवट टाइप ऑफ लो एंड मीडियम हेड्स। ओके, तो ये काम होता है वॉल्व्स एंड गेट्स का। नेक्स्ट है ट्रैश रैक्स। ट्रैश रैक्स क्या है, आप देख सकते हैं इस फिगर में क्या है, एक तरह से छलनी है। तो दीज आर द बिल्ड अप फॉर द लॉन्ग एंड फ्लैट बार्स। बड़े बड़े लॉन्ग और जो फ्लैट टाइप की बार्स है उनको आपस में मिलाकर एक ट्रैश रैक बनाया जाता है। और ये कैसा होता है, सेट होता है वर्टिकली डायरेक्शन के अंदर एंड क्लोजली स्पेस्ड होता है, नियरली स्पेस टू ईच अदर अकॉर्डिंग विद द मिनिमम विद ऑफ द वाटर पैसेज, ताकि क्या हो, वाटर पैसेज की विड्थ है वो एज लो एज पॉसिबल हम कर सकें थ्रू द टरबाइन, जब टरबाइन की तरफ जाते हैं। तो ये ट्रैश रैक कहाँ प्रोवाइड करा जाता है? ट्रैश रैक प्रोवाइड करा जाता है जब वाटर क्या हो, पेन स्टोक से होता हुआ टरबाइन की तरफ जा रहा है। तो बिल्कुल जब टरबाइन के एंट्री है वहाँ पे हम किसको प्रोवाइड कराते हैं? वहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं ट्रैश रैक्स को। ठीक है, दीज क्लियर स्पेस बिटवीन द बार्स ऑफ 25 mm, 40 mm, 150 mm, 200 mm ऑन वेरी लार्ज इंस्टॉलेशन। अलग अलग mm की बार्स का आप यूज़ कर सकते हैं। दीज आर टू प्रिवेंट द फ्लोटिंग एंड अदर मटेरियल टू द टरबाइन, ताकि क्या है, टरबाइन के अंदर किसी तरह का बड़ा फ्लोटिंग मटेरियल या जो बाई चांस जो पेन स्ट्रोक में आ गया है वाटर, पहले इंटेक का भी यही काम होता है कि ताकि क्या हो, जो इम्प्योरिटीज़ है बड़ी बड़ी वो आगे की तरफ नहीं जाए। बाई चांस फिर भी इंटेक से पास होता हुआ कोई बड़ी इम्प्योरिटी पेन स्ट्रोक से होते हुए टरबाइन तक पहुंच गई है, तो तब क्या हो, टरबाइन में जाके क्या हो, ये स्टक हो जाएगी और टरबाइन का जो ऑपरेशन है वो फेल हो जाएगा और इससे टरबाइन क्या हो सकते हैं, डैमेज भी हो सकते हैं। तो बिल्कुल टरबाइन के एंट्री से जस्ट पहले ही हम ट्रैश रैक प्रोवाइड कराते हैं फॉर एडिशनल सेफ्टी। ठीक है, and in some case where large diameter turbine employed, these racks are omitted, but provision is usually made for skimmer walls or booms to prevent ice and other type of material। तो ये काम होता है ट्रैश रैक का। नेक्स्ट ट्रैश रैक के बाद क्या है, टेल रेस। तो आप देख सकते हैं टेल रेस, ये रहा। तो क्या होता है, जब सब काम कंप्लीट हो गया है, जब वाटर पेन इंटेक सर्च टैंक होता हुआ जब वाटर 4 बे से
इंटेक से पास होके पैन स्ट्रोक से होता हुआ जब बिल्कुल टरबाइन तक आ गया है, टरबाइन में वाटर जनरेशन, वाटर से वेलोसिटी से पावर जनरेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा था, वापस जब इस वाटर को पास करना पड़ेगा आगे की तरफ, तो वो कहाँ पे, उस एरिया को जहाँ वाटर को क्या है आफ्टर यूज़ छोड़ा जाता है, उसको क्या कहते हैं, टेल रेस। ठीक है, द वाटर आफ्टर हैविंग डन इट्स यूजुअल वर्क इन द टरबाइन सो इट इज़ डिस्चार्ज टू द टेल रेस। तो बिल्कुल जब काम ख़त्म हो चुका है, सब कुछ टरबाइन में वाटर से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिया, अब क्या होगा, वाटर क्या आगे की तरफ पास कर देंगे। तो जो आगे का जो एरिया है एक हाइड्रो पावर प्लांट का, जहाँ पे क्या होता है, वाटर को डिस्चार्ज करते हैं आफ्टर इट्स यूज़, उसको क्या कहते हैं, टेल रेस। ठीक है, एंड टेल रेस इट डिस्चार्ज विच मे लीड टू द सेम स्टीम और अनदर वन। द डिज़ाइन एंड साइज ऑफ द टेल रेस शुड बी सच दैट द वाटर हैज़ ए फ्री एग्जिट एंड द जेट ऑफ वाटर आफ्टर इट लीव्स द टरबाइन हैज़ अनइम्पीडेड पैसेज। तो ताकि ईजिली जो वाटर है वो आगे की तरफ पैसेज हो जाए और वापस रिवर्स बैक ना आए टरबाइन की तरफ। तो इसके हिसाब से हम क्या करते हैं, टेल रेस की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए वो डिज़ाइन करते हैं। तो टेल रेस क्या है, जब वाटर आगे की तरफ जब फ्लो हो रहा है, बिल्कुल आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ से ये वाटर आगे की तरफ फ्लो हो रहा है। नेक्स्ट है ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, ड्राफ्ट ट्यूब जब वहाँ प्रोवाइड कराई जाती है जब क्या टरबाइन से वाटर पास हो जाता है, आफ्टर वाटर जब टरबाइन पे आके वाटर स्ट्राइक करता है, उसके बाद क्या होता है, टरबाइन के रनर को वो मूव करेगा और उसके बाद क्या होगा, आगे बढ़ेगा। आगे उसके बाद में उसको क्या करेंगे, उसको टेल रेस के अंदर हम डिस्चार्ज कर देंगे। तो जहाँ जिस पाइप्स के थ्रू हमको उसको टेल रेस की तरफ डिस्चार्ज करेंगे, उस पाइप्स को क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। तो इनको क्यों प्रोवाइड कराते रहते हैं, सो ड्राफ्ट ट्यूब का क्या काम होता है, एन एयर टाइट पाइप इज suitable diameter attached to the runner outlet and conducting water down from the wheel and discharging it under the surface of water in the tail race is known as draft tube। तो ये आप कुछ देख सकते हैं इस तरह का ये फिगर, हम जूम करके देखते हैं। तो ये देख लीजिए बिल्कुल, ये वाटर रिजर्वायर से आया, यहाँ पे वाटर फ्लो हुआ, यहाँ गेट्स है, प्रेशर टनल है, ये सर्च टैंक, नेक्स्ट सर्च टैंक के बाद पेन स्ट्रोक के बाद इनलेट वॉल्व, उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ हाइड्रोलिक टरबाइन प्रोवाइड करा रहे हैं जिससे कि वाटर जनरेशन होगा। अब इस पूरा वाटर जनरेशन होने के बाद जो भी वाटर है वो क्या होगा, उसको हमको टेल रेस के अंदर डिस्चार्ज कराना है। तो बिल्कुल जहाँ यहाँ टरबाइन से हम जो अब इसको क्या करना है, हमको डिस्चार्ज करना है। तो ये जो पाइप है जो टरबाइन से कनेक्टेड है और जो वाटर को डिस्चार्ज कर रहा है उसको क्या कहते हैं, ड्राफ्ट ट्यूब कहते हैं। ठीक है, इसका काम क्या होता है, अगर हमने ड्राफ्ट ट्यूब को नहीं प्रोवाइड कराया, इफ़ देयर इज़ नो ड्राफ्ट ट्यूब एंड वाटर डिस्चार्ज फ्रीली फ्रॉम द टरबाइन एग्जिट, टरबाइन के एग्जिट से वाटर क्या हो रहा है, फ्रीली फ्लो हो रहा है, अगर हमने ड्राफ्ट ट्यूब को नहीं प्रोवाइड कराया, इन दैट केस देन द टरबाइन ऑपरेट अंडर ए हेड इक्वल टू द हाइट ऑफ हेड रेस वाटर लेवल अबाउ द रनर एग्जिट। तो क्या होगा, जो टरबाइन का जो ऑपरेशन है वो किसका हो जाएगा, अंडर द हेड equal to the head of head race and by installing the draft tube, और ताकि अब जब हम ड्राफ्ट ट्यूब को प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, जो ऑपरेटिंग हेड है टरबाइन का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा बाय एन अमाउंट इक्वल टू द हाइट ऑफ द रनर आउटलेट। तो उसका क्या होगा, हेड इंक्रीज होगा टरबाइन का, और टरबाइन का हेड इंक्रीज होगा तो टरबाइन की क्या होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी और टरबाइन और ज़्यादा रोटेट करेगा और ज़्यादा पावर जनरेशन होगी। जिससे क्या होगा, टरबाइन की एफिशिएंसी बढ़ती है बिकॉज ऑफ इंस्टॉलिंग ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, सो व्हेन द ड्राफ्ट ट्यूब इज अटैच्ड दिस क्रिएट ए नेगेटिव प्रेशर हेड एट द रनर एग्जिट, और जहाँ से एग्जिट हो रहा है वाटर वहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर इफेक्ट करेगा, और जो ये नेगेटिव प्रेशर है वो क्या होगा, दिस मेक इट पॉसिबल टू इंस्टॉल द टरबाइन अबव द टेल रेस विदाउट लॉस ऑफ हेड। ओके, और यहाँ पे कुछ अलग, बाय इंस्टॉलिंग द ड्राफ्ट ट्यूब एंड इंक्रीजिंग इट्स सेक्शन फ्रॉम रनर एग्जिट। तो ड्राफ्ट ट्यूब का इंस्टॉलेशन करने से क्या होगा, उसके सेक्शन इंक्रीज होगा फ्रॉम द रनर एग्जिट टू द टेल रेस एंड सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय द वाटर लीविंग the runner outlet is converted into pressure energy and the water leaves
एट द टेल रेस एट मच रिड्यूस वेलोसिटी। और इसके अलावा ये क्या काम कर सकता है, इसकी वजह से ड्राफ्ट ट्यूब की वजह से जो वाटर है जो बहुत हाई वेलोसिटी से रिलीज़ हो रहा है टेल रेस के अंदर, तो उसकी क्या हो सकती है, उसकी वेलोसिटी को भी मिनिमाइज़ करता है ड्राफ्ट ट्यूब, ताकि क्या हो वो उसकी कम वेलोसिटी से टेल रेस की तरफ डिस्चार्ज हो। ठीक है, एंड दिस रिजल्ट अगेन इन द काइनेटिक हेड विच इंक्रीज द नेगेटिव प्रेशर एट द रनर एग्जिट एंड दिस टर्न इंक्रीज द ऑपरेटिंग हेड टू द टर्बाइन एंड इंक्रीजिंग इन आउटपुट एंड एफिशिएंसी। तो आपने क्या करा, उसका वेलोसिटी कम कर दी उसकी वाटर की डिस्चार्जिंग की। तो इस वेलोसिटी कम करने की वजह से क्या हुआ, जो एग्जिट है टरबाइन के उसकी वजह से क्या हुआ, वहाँ पे क्या हुआ, एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हुआ, और इस नेगेटिव प्रेशर से क्या हो गया, टरबाइन की में रोटेशन और ज़्यादा बढ़ गया और टरबाइन की एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ गई बाय द यूजिंग ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब। ओके, एंड दीज आर सम टाइप ऑफ नॉर्मल ड्राफ्ट ट्यूब विच आर प्रोवाइडेड, एंड दिस वन कॉनिकल और डाइवर्जेंट टाइप ड्राफ्ट ट्यूब, दिस इज एल्बो टाइप ड्राफ्ट ट्यूब, is a simple elbow draft tube, and this is the hydrocrane और body spreading type of draft tube। तो ये सब है इनलेट है और ये आउटलेट है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसका, लेकिन इसके शेप कैसा है, एल्बो के जैसा। तो ये इसका इनलेट है और ये आउटलेट है। इसी तरह से ये दो अलग अलग हिस्सों में डाइवर्जेंट हो रहा है, तो ये इसका इनलेट आया और यहाँ से ये आउटलेट हो रहा है। ये ड्राफ्ट ट्यूब का काम हो गया। एंड द हाइट एंड द टाइप ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब यू यूज़ डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। तो और ड्राफ्ट ट्यूब की हाइट और उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए वो टू फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वो क्या होती हैं, एक तो पहला क्या होता है, द प्रेशर एट द टरबाइन एग्जिट और इनलेट ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब शुड नॉट बी लेस देन 1/3 ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहली बात क्या होनी चाहिए, जो टरबाइन से जब वाटर बाहर निकल रहा है ड्राफ्ट ट्यूब की तरफ जा रहा है, तो जो उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो, जिसमें जो उसके अंदर जो प्रेशर है वाटर का, वो क्या हो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 1/3 से कम ना होना चाहिए। इसके लिए हम क्या पूरा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ड्राफ्ट ट्यूब का चयन करेंगे कि किस टाइप की ड्राफ्ट ट्यूब यूज़ हो, ताकि जो क्या हो वाटर का प्रेशर है वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 1/3 से नीचे ना चला जाए। ओके, एंड दिस इज एसेंशियल टू अवॉइड कैविटेशन, और कैविटेशन को भी अवॉइड होना चाहिए। उसी अकॉर्डिंग हमको ड्राफ्ट ट्यूब का सिलेक्शन करना है। एंड ऑल्सो टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ द फ्लो विदाउट वेपोराइजेशन, और फ्लो क्या हो कंटिन्यूटीली चलती रहे, फ्लो की कंटिन्यूटी रेगुलर रहे, उसके अकॉर्डिंग हमको ड्राफ्ट ट्यूब का सिलेक्शन करना है। ओके, तो ये सब चीज़ें माइंड में रखनी है व्हेन द सिलेक्शन ऑफ द ड्राफ्ट ट्यूब। नेक्स्ट है वाटर टरबाइन। तो वाटर टरबाइन क्या होता है, इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट वाटर टरबाइन एज यूज्ड एज ए प्राइम मूवर्स एंड देयर फंक्शन इज टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इनटू मैकेनिकल एनर्जी which is further utilized to drive the alternator generator which produce electric energy। तो टरबाइंस क्या होते हैं, जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको टरबाइन के अंदर होता क्या है, टरबाइन के अंदर जो आगे की तरफ जो होता है उसका पार्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, रनर्स होते हैं। रनर्स क्या होते हैं, बड़ी बड़ी ब्लेड्स होती है, जब जो आपस में कुछ क्लोजली स्पेस्ड होती है एक दूसरे, ताकि उनमें बीच में से एयर भी पास आउट हो सके। तो ये रनर ब्लेड्स होती है। जब वाटर आके जब इन रनर ब्लेड्स के ऊपर स्ट्राइक करता है तो उसकी वजह से क्या होती है, रनर ब्लेड मूव करने लगती है। तो अब जो वाटर की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसने किसको, अब वो इस टरबाइन में किस में कन्वर्ट हो गई, रनर के चलने की वजह से किस में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, अब इस रनर का जो पिछला पोर्शन है, जो नेक्स्ट पोर्शन है, वो किससे कनेक्ट होता है, वो जनरेटर, उस जनरेटर के स्टार्टर से कनेक्ट होता है। तो जनरेटर के स्टार्टर से कनेक्ट होता है। तो जब ये ब्लेड्स मूव करती है तो उसी तरह से जनरेटर का स्टार्टर भी मूव करता है, और जनरेटर का स्टार्टर मूव करता है तो उसका आगे का हिस्से स्टार्टर कहलाता है और बैक साइड का हिस्सा क्या कहता है, आर्मेचर कहलाता है। तो वो स्टार्टर भी मूव करेगा और उसके साथ साथ आर्मेचर भी मूव करेगा। और आर्मेचर किसके अंदर मूव करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है। इससे क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप होता है, और इसी मैग्नेटिक फ्लक्स से क्या होता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप होती है। वी नो दैट। सो वाटर टरबाइंस क्या काम करते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वाटर टू चेंज इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। एंड उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो आता है जनरेटर्स। एंड द जनरेटर इज कनेक्टेड टू द टरबाइन ड्राइव शाफ्ट एंड इट हैज़ मूविंग पार्ट और रोटर एंड इट्स ए फिक्स पार्ट विद ए स्टार्टर। तो जनरेटर का जो मूविंग वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, रोटर, और जो फिक्स पार्ट है उसको क्या कहते हैं, स्टार्टर।
The rotor's outer surface is converted with electromagnetics, and the starter inner surface are cylindrical wall is made up of the copper winding. When the rotor turns inside the starter, the electron in the copper winding vibrate and their movement generate the electric current. ठीक है. And the majority of the hydroelectric installation utilize salient pole सिंक्रोनाइज जनरेटर. तो मोस्टली जो हाइड्रो पावर प्लांट है उसमें किस टाइप का जनरेटर यूज़ आता है? सिंक्रोनाइज जनरेटर. सेलेंट पोल सिंक्रोनाइज जनरेटर है. और सेलेंट पोल मशीन आर यूज बिकॉज द हाइड्रोलिक टर्बाइन ऑपरेटेड एट द लो स्पीड. तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि क्योंकि हम जानते हैं कि हाइड्रोलिक टर्बाइन होते हैं वो क्या होता है? लो स्पीड के ऊपर चलते हैं. ओके. तो मोस्ट ऑफ द जनरेटर विच आर यूज एट द हाइड्रो पावर प्लांट आर silent pole synchronized type of generator. And the last, the power transmission line. When the turbine spins and produce electricity, this electricity can be transported through the long distance electric lines to the homes and factory and business. तो जो भी वाटर से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेवलप हुई है वो क्या पावर ट्रांसमिशन लाइंस के थ्रू क्या होती है? कन्वे की जाती है और स्टोर की जाती है. जस्ट जहाँ पे भी इनको जाना है या जहाँ पे भी हमको इनको यूज़ में लेना है तो उसका काम किससे होता है? पावर ट्रांसमिशन लाइंस में. तो ये सब कुछ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स थे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, जिनके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा. अब जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम जो ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे वो है वाटर टर्बाइंस के बारे में, कि किस किस टाइप के वाटर टर्बाइंस होते हैं, इनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है और क्या क्या जो भी इम्पॉर्टेंट थिंग्स हैं हमको माइंड में रखनी है ताकि सेलेक्ट करने के टाइम कि हमको किस टाइप का टरबाइन को हाइड्रो पावर प्लांट में यूज़ करना है. उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे. उसके अलावा बाकी सब पॉइंट्स जो भी कंपोनेंट्स हैं वाटर है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में, उनके बारे में हमने इस लेक्चर के अंदर डिटेल पढ़ लिया है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट. ओके, द नेक्स्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द टर्बाइंस.